ये सी theoretical concepts of single entry system, or another name of the chapter is accounting for incomplete record. So you will come to know which theoretical question and which theoretical part you have to prepare for your exams. Let's firstly be clear what actually the single entry system means. Firstly, this system is basically being adopted by your small scale businessmen, like whosoever they are running their business on a very, very small scale. And if I relate it with the types of business organization of your business study subject, so he or she is running the business as a sole proprietor. ठीक है, मैं हमेशा ये वर्डिंग यूज करती हूँ आपके गली मोहल्ले में जो छोटी मोटी दुकानें हैं, दैट कैन बी अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप, ठीक है, कोई कॉस्मेटिक की शॉप है या छोटा सा जर्नल स्टोर किसी ने खोला हुआ है, सो दैट आर preparing their books of accounts and they are following single entry system, right? What is the meaning of single entry system here, students? They never follow the dual aspect of accounting, means they never bother, या इन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि कॉमर्स में for every debit there is a reverse credit, and their books of accounts are not being checked by CA. They never appoint the CA for the checking of their books of accounts. They prepare their books of accounts only for their own convenience. तो इनको जो सही लगता है ये वही रिकॉर्ड करते हैं. कई बार आपने देखा होगा, whenever you visited to such shops, इनके पास कोई चीज नहीं है तो they ask, आप मेरे को लिखवा जाओ, शाम को ले जाओ, ठीक है, और you buy something, वो immediately अपनी सेल अपनी डायरी या कॉपी में लिखते हैं. So at the time they are following accounting but not recording each and every aspect of business, ठीक है. तो single entry system is being followed by business houses who are operating on a very, very small scale. Let's see a formal definition of the system, and its another name is accounting for incomplete record. Let's start. Yes, see from your book how he has defined it. So we have two definitions in our book. One definition is as per Carter. So he explained this concept or this term in a comprehensive manner. Let's see what he says. Single entry is a method or variety of methods employed for recording the transactions which ignores which ignores what? Twofold aspect of accountancy. What is the meaning of twofold? जिसे आम भाषा में मैं dual कहती हूँ या double entry concept कहती हूँ. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग twofold aspect को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, and consequently fails to provide the businessman with the information necessary for him to be able to ascertain the position. कहता एक तो ये टू फोल्ड एस्पेक्ट को क्या करता है? इग्नोर करता है, और एंड में इसकी हेल्प से जो फाइनेंशियल पोजीशन हम जज करते हैं, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न. मींस उसने डेफिनेशन इसके ड्रॉबैक ही बताए. व्हाट इट इज नॉट फॉलोइंग, टू फोल्ड एस्पेक्ट को नहीं फॉलो करता, और इसकी हेल्प से जो भी हम लोग क्या बनाते हैं वैसे सिंगल एंट्री में, इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, व्हाट वी prepare instead of preparing balance sheet we prepare statement of affairs. Instead of preparing trading and P&L account, we prepare statement of profit or loss. So whatever we do, we ignore so many terms, we ignore so many aspects of accountancy. So whatever position the system is giving to you, that is not the exact position of the business. So this is according to Carter, a definition being given by him. Yes, उसके बाद इसके types important है भाई. Next term is forms of single entry system. That time we just picked the न्यूमेरिकल पोर्शन डायरेक्टली, ठीक है. सो ये थ्योरी के पॉइंट तब हमने डिस्कस नहीं किए हुए. फॉर्म्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, फर्स्ट इज प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड इज सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड द थर्ड इज क्वासी. यू नो क्वासी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. क्वासी का अगर आप लिटरली मीनिंग देखो या डिक्शनरी मीनिंग देखो तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम? अंडर दिस सिस्टम ओनली personal accounts of debtors and creditors are maintained. It means कि real and nominal accounts are ignored. तो ये वाला सिस्टम, जैसे मैंने अभी बोला, आज इन छोटी मोटी दुकानों से अगर आप उधार पे सामान खरीदते हैं तो वो आपका नाम और टेलीफोन नंबर लिख लेंगे, ठीक है. तो ये सिर्फ अपने डेटर्स के नाम लिखते हैं. प्योर सिंगल एंट्री का क्या मतलब है? जिसको मैंने पैसे देने हैं और जिससे मैंने पैसे लेने हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स. तो अंडर प्योर, पी से याद रखना, पी फॉर प्योर, पी फॉर पर्सनल. So under pure single entry system, we just record the personal accounts. So what is being ignored? Real रह गया और nominal रह गया. Real account की इस system में कोई space नहीं है. Personal account ही सिर्फ यहाँ पे क्या होते हैं? Record होते हैं. Then simple single entry system. Simple single entry system में
पर्सनल के साथ साथ कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती है, मींस कैश बुक भी यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। हमारे सिलेबस में क्योंकि इसने एक टॉपिक ही डिलीट कर दिया है, अदरवाइज देयर वाज अ सिस्टम व्हेन वी वर लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, but due to this covid era he has removed that from our syllabus, right? टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। सिंपल, सिंपल में क्या बनाता है प्रोप्राइटर, कैश बुक भी बनाता है और साथ में पर्सनल अकाउंट का भी रिकॉर्ड रखता है, राइट? आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी? मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। लेट्स सी, ये पर्सनल अकाउंट भी रिकॉर्ड करता है, कैश बुक भी रिकॉर्ड करता है, एंड सम सब्सिडरी बुक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स? दैट कैन बी सेल्स बुक एंड परचेज बुक, ठीक है? तो सब्सिडरी बुक मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस समथिंग एल्स, दैट बिकम्स क्वासी। पहले दो का कॉम्बिनेशन और कुछ और, पहले दो का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा? इसमें पर्सनल भी रिकॉर्ड होंगे अकाउंट्स, इसमें कैश बुक की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी और कुछ सब्सिडरी बुक्स भी रिकॉर्ड होंगी। और सब्सिडरी बुक्स में आपके पास चार मेन बुक्स हैं भाई, परचेसेस बुक, सेल्स बुक, बीआर बुक एंड बीपी बुक, ठीक है? तो इसका स्कोप बाकी दोनों के स्कोप से क्या बन जाता है? वाइडर बन जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्वासी, वेरी सिंपल टू लर्न। Okay, now come to the salient features of single entry system. Can you recall some features? You know, जब कभी भी पेपर में फीचर पूछा जाता है, मैम ने भी आपको बताया होगा, फीचर कंप्राइजेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है? ये मत बोलना जैसे मैंने टेलर मेड के टेस्ट में भी पूछे थे फीचर्स, तो कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा फीचर्स तो करवाए नहीं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिक्स कर दो तो वो फीचर्स बन जाते हैं। नाउ यू टेल, सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? इट्स अ सिंपल, नो टेक्निकल नॉलेज इज बीइंग रिक्वायर्ड। आपको कोई सीए नहीं अपॉइंट करना, आपको कोई अकाउंटेंट नहीं अपॉइंट करना, हमारा बिजनेसमैन बहुत आसानी से सिंपल सा रिकॉर्ड खुद ब खुद बना सकता है। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिकल है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दिलानी अपने पर्सन्स को, कोई ट्रेंड पर्सन नहीं देना, तो हाई फाई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल नॉलेज वाला बंदा जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी आती है वो सिंगल एंट्री को अडॉप्ट कर सकता है, इकोनॉमिकल है। एनीथिंग एल्स? Salient features we are going to discuss. 6-7 है हमारी बुक में। Of what? Salient features of this single entry system or what we call accounting for incomplete record. Let's see. Maintenance of personal account. अगर मैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट को स्ट्रेस दिया जाता है। So while preparing your personal account, you can come to know how much you are supposed to take from your debtor, how much you are supposed to pay to your creditors. So personal account बनाना हमारे लिए आसान रहता है। Maintenance of cash book. अगर मैं किसकी बात करूं, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो अंडर दैट वी प्रिपेयर पर्सनल अकाउंट एज वेल एज व्हाट we prepare cash book transactions also, right? Features. Dependence on original voucher, very important point. What is the meaning of that? Dependence of original vouchers. What it means? Vouchers क्या होते हैं? Vouchers क्या होते हैं? These are the documents which we prepare for our own convenience. Like debit voucher will be showing what? Will be showing what? Debit voucher का मतलब बताओ भाई, डिस्कस किया है। डेबिट वाउचर का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट वाउचर? तो मैं आगे चलूंगी। एंड हेडिंग है डिपेंडेंस ऑन वाउचर्स। ये फीचर बनाया उसने सिंगल एंट्री सिस्टम का। आपने मेरे को वाउचर्स का मीनिंग बताना है। हाउ विल यू डिफाइन वाउचर्स? यस, एनीबडी? वाउचर्स मींस व्हाट? प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, मैंने क्वेश्चन पूछने हैं वावा में। So topic is not new for you. Anyone? Whosoever is sitting, and you may raise your hand who are sitting online. What do you mean by vouchers? No one knows. Voucher की definition ही नहीं आती। समय बोलो। Speak, what is voucher? सिंगल एंट्री में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी उन रिकॉर्ड्स के पीछे आपको वाउचर्स देखना पड़ेगा। मींस यू विल सी वाउचर, तब आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर में मशीनरी लिखोगे। आपके पास डेबिट वाउचर होगा, उसको देख के आप अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मशीनरी की वैल्यू लिखोगे। आप फर्नीचर की अगर वैल्यू लिख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वाउचर में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। सो व्हाटएवर यू आर पुटिंग द ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जर्नल एंट्री तो करी नहीं ना। अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो हम पहले जर्नल एंट्री किया करते हैं, फिर हम लेजर बनाया करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर कहीं जाके ट्रेडिंग P&L बनता है। यहाँ पे ये सब कुछ थोड़ी ना हुआ। सिंगल एंट्री सिस्टम में हु इज पासिंग द जर्नल एंट्री? नो वन। No business house is supposed to follow the double entry system when you adopted single entry system.
ठीक है, अगर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम यूज किया है, इट मींस कि आप जर्नल नहीं पास कर रहे, आप उनके लेक्चर नहीं बना रहे, देन हाउ यू विल बी राइटिंग द अमाउंट्स इन योर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल? ठीक है, हाउ यू विल बी राइटिंग योर अमाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? यू आर डिपेंडेंट अपॉन वाउचर्स. वहां पे अगर मैं बात करूं, इफ यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन ट्रायल बैलेंस. भाई ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेक्चर अकाउंट्स. हर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ही तो गिवन था. पॉइंट इज क्लियर? So on what we are dependent while preparing the books of accounts under the system? We are totally dependent upon vouchers. No uniformity. What it means? What is the meaning of uniformity? No uniformity. Mr. A is running a grocery shop in your locality. Mr. B is running a journal store in your locality. What Mr. A is following is not essential Mr. B will be following. दोनों single entry follow कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ डेटर्स का अकाउंट बनाता है, दूसरा डेटर्स का भी रिकॉर्ड रखता है, क्रेडिटर्स का भी रिकॉर्ड रखता है. दो दे आर नॉट नोइंग व्हाट इज डेटर्स एंड व्हाट इज क्रेडिटर. तो वो अपने उन कस्टमर्स का नाम लिख के रखता है जिन्होंने उससे उधार पे सामान खरीदा. वो साथ में उन बंदों का भी नाम लिख के रखता है जिनको उसने पैसे देने हैं. राइट, उनको नहीं पता डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं. तो इट मींस कि अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिमिलैरिटी नहीं होगी. Every small business house will be preparing his or her books of accounts as per his own convenience. उसको जो आसान लगता है, उसको जो जरूरी लगता है, वो वही लिख के रिकॉर्ड करता है. You are getting me? यूनिफॉर्मिटी नहीं है. लेकिन once you are following double entry system, तो हर बिजनेस हाउस का एक ही फॉर्मूला होगा एनपी निकालने का. क्या? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम. लेकिन इनके फॉर्मूलाज गेट चेंज्ड. ओपनिंग कैपिटल लिखो, क्लोजिंग कैपिटल लिखो, एडिशनल कैपिटल ऐड करो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ आइटम छोड़ सकते हैं, कुछ आइटम ले सकते हैं, एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. Once you are running your business on a very very small scale and you are not bothering to adopt the double entry system, it means कि nobody is going to interfere in your business. अगला भी point clear cut है, flexibility. Anytime you can change your method of recording. ठीक है, because nobody is going to ask a question from you. Had you been following double entry system, then you are supposed to follow what? Consistency. अगर एक साल डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है तो दूसरे साल आप उसे रिटर्न डाउन वैल्यू पे नहीं लेके जा सकते जब तक आपका उसके पीछे लॉजिक और रीजन जेन्युइन ना हो. लेकिन यहाँ पे यू आर फ्री टू चेंज फ्रॉम वन मेथड टू अनदर. सुटेबिलिटी, ये क्वेश्चन आता है. डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. फॉर whom it is suitable? On या for businessman whose scale of the business is very small, whose scope of the business is very small. देखो इसने क्या लिखा? The system is suitable in case of small proprietary or partnership concern. Can the public limited company afford to use the system? No. हमारे इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है भाई. उस कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कंपनीज आर सपोज टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो कर सकती. लिखा भी है उसने. लिमिटेड कंपनीज कांट अडॉप्ट दिस सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहां पे सेबी के रेगुलेशंस हैं. वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 है विद अमेंडमेंट्स. So they are not in a position to use this system. So these are the features. Then what else you have to do in this chapter? That is the difference between, कोई 5 difference करने हैं, 10 या 12 difference दे रखे हैं. Difference between single entry system and double entry system. Who will tell? कोई भी 5 discuss करते हैं with headings. Difference between, बोलो क्या क्या है? Double entry system and सिंगल एंट्री सिस्टम. DES एंड SES. यस बोलिए. पहला सुटेबिलिटी का ही बना लो. फॉर whom it is suitable? Public limited companies, private limited companies, they can have. और सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए यूजफुल है? जिनका बिजनेस का स्केल बहुत स्मॉल है एंड दे आर रनिंग देयर बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म. अब बुक के पहले 5 हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट. पहला है इंफॉर्मेशन. किस सिस्टम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए? डबल एंट्री सिस्टम. मींस हर ट्रांजैक्शन का आपको डबल एस्पेक्ट चाहिए. यहां पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से भी आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हो. व्हाटएवर ही इज राइटिंग इन योर बुक, लेट मी रीड. डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. अगर मशीनरी डेबिट हुआ है तो उसके पैरेलल कैश भी आपने क्रेडिट किया है. आपको पता चल जाएगा कैश का आउटफ्लो क्यों हुआ. लेकिन यहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती.
So it is an incomplete method. In some cases, both, and in other cases only one or no aspect is recorded. कहता सिंगल एंट्री सिस्टम में बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन बिजनेस, कई ट्रांजैक्शन के लिए आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, कईयों के लिए आप एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, और कई ट्रांजैक्शंस को आप इग्नोर ही कर देते हो. बिकॉज वट एवर यू फील इट इज असेंशियल, दैट ओनली यू रिकॉर्ड. नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू कि आपको ऐसा ही रिकॉर्ड करना है. सो इन दैट केस इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहती है. कॉस्ट, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि यहाँ पे आपको कोई खास खर्चा नहीं करना, आपको कोई पर्सन्स बाहर से हायर नहीं करने, आपको कोई क्लरिकल स्टाफ नहीं लेना, आपको अकाउंटेंट्स नहीं अपॉइंट करने, आपका बिजनेस ही स्मॉल स्केल पे है, सारा कुछ आप खुद करोगे ना रिकॉर्ड, राइट. और वहां पे इट इज कॉस्टली मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन बिकॉज सम बिजनेसमैन फील इट एज अ लग्जरी. लग्जरी का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक इफ वी आर पेइंग टैक्स, वी आर अपॉइंटिंग सीए, सीए इज विजिटिंग टू आवर शॉप और बिजनेस हाउस डेली या twice in a week या once in a week, तो we feel that yes it is our status symbol. So ये क्या पड़ता है, costly system होता है. यहाँ पे maintenance of books is made by following the legal requirements, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है. It depends upon your own wish whether you want to appoint the CA or not. ठीक है. Knowledge of accountancy principle, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए. मींस यू शुड नो व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यू शुड नो व्हाट इज कंसिस्टेंसी. लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को तो हम फॉलो ही नहीं करते, because this is our own business, this is our own desire, this is our own wish how the books of accounts are to be maintained. Accuracy of books, which system will be giving an accurate, fair and just view of your business. This क्यों, क्योंकि accuracy can be judged by preparing your trial balance. अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होता मींस कुछ एरर्स हैं, यहाँ पे तो गलतियां पता ही नहीं चलनी. Because we never pass journal entries, we never prepare ledger, we never based our transaction on trial balance etc. So accuracy का यहाँ पे नामो निशान नहीं है. यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस, मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. Then fifth, number of accounts. यहाँ पे तीनों अकाउंट्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तीनों तरह के अकाउंट्स बनते हैं. यहाँ पे हमारी विश पे डिपेंड है. इफ यू आर फॉलोइंग प्योर, प्योर का मतलब क्या था, ओनली पर्सनल. If you are following simple, cash book and personal both. If you are following quasi, बोलो, this is personal, cash and some subsidiaries. ठीक है? So this is the basic difference, right? एक डिफरेंस आपने करना है बच्चे, इस चैप्टर में से 2 ही डिफरेंस करने हैं. बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. विल यू टेल एनी डिफरेंस या सिमिलर है? Yes, who will tell? Balance sheet or statement of affairs में difference, who will tell? Balance sheet is being prepared when you are following double entry system. Statement of affairs is being prepared when you are following single entry system. Any other difference? In balance sheet, we just put the record of your adjustments. जो फाइनल अकाउंट के चैप्टर में एडजस्टमेंट दी होती थी वो बैलेंस शीट में शो करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्टमेंट्स नहीं हम शो करते. और यस, बैलेंस शीट कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं देती, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपको बैलेंसिंग फिगर देती है. अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो ओपनिंग कैपिटल आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी. अगर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल. बैलेंस शीट की तो दोनों साइड मैच होती है ना. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स का पता चलता है. सो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट इनफ, राइट? एनी अदर डाउट? प्रैक्टिकल से पहले वाली बस इतनी ही थ्योरी आपको करनी है, नथिंग एल्स, राइट? किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क. एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क.